A very, very good evening. A very good evening and namaste to all the Khayal community members. It's great to see all of y'all in such a large strength for today's session. So this is me, Vikas, and we are with the Khayal community. We are a community of senior citizens from all over the country, and we meet every day and we have fun and interesting sessions. So, on a daily basis, every day in the evening at 5:30, we meet up with the community. And on Mondays, we have a sing along session. And on Tuesdays, we learn technology. On Wednesday, we meet experts, which is today. And I'm going to tell you about today's expert. On Thursdays, we do yoga, and Friday, we play interesting games like Tambola, Housey, and other quizzes. So, this is all about the Khayal community. We are very, very active, although we are all seniors, and we are very connected. And it's always great to see the entire Khayal community. Today's session is very special. And to take us through today's session, we have Danish Panjwani, and we are going to talk about self-preservation and self-protection from the point of view of senior citizens in the Khayal community. So first of all, a very, very warm welcome to Danish. Hi, good evening from the entire Khayal community. Good evening. Thank you so much. Thank you. Good evening. So, Danish, we have already told you so many things about us, and we have had this conversation before about the Khayal community. And Danish was so excited, to come here and talk to senior citizens. He told me that I want to come and speak to senior citizens because I've spoken to so many different types of people. Young people, people who are in school, but I have not really had the chance or an opportunity to talk about what I do and how it will help them. So Danish has, is a he's a student of martial arts, okay, and he's also the founder of Enlightened Hand Martial Arts Dojo, and he started this entire journey of martial arts. And I'll tell you why we still call everyone who learns martial arts a student, okay, because they're always learning. So he started this journey at the age of 9, and it was, I believe he told me it was a movie from Bruce Lee that he was watching called The Return of the Dragon. And as a 9-year-old boy, he was so inspired, and he said that this is what I want to do, and this is what I want to be good at. And true to his dream, he's followed that up, and he has today founded a dojo called Enlightened Hand, and he teaches and he shares all that he has learned, because he told me that he believes that he wants to make this world a much, much more better place and a safer place, and he would love to do that for our seniors. So he's going to tell us all about how to uh, how to self-preserve yourself, how to get out of trouble, how not to get into trouble, and what to do if you are in trouble. Yep. All right, Danish, I can go ahead and tell them that you have learned karate, Chinese kickboxing, Shaolin, Kung Fu, Muay Thai, and some other things that I really can't pronounce, Yeah. because I believe you have done so many different things, and you've also been studying military warfare and weapon tactics through the art of Kali. Yeah. So there are so many things that I want to ask you, but we'll take it slow, and we'll give it up to you. First of all, thank you from the entire Khayal community, and I'm sure our members are also very interested to know how your journey started and how you became a martial artist. Sure. No, absolutely. First of all, I am very, very honored to be here. In fact, like you said, that I have spoken to a lot of people. I've spoken to different age groups, but speaking to senior citizens this is actually my first time. So I just hope that I don't make it as boring as self-defense generally people think of it to be. So I'm going to keep it a little more interactive. So I would really like
that you all also, you know, talk to me and ask me questions, because that way then, you know, even I won't get bored as much. Okay. ओके, सो दानिश हम आपको एक चीज बता दें कि Mhm. हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वी आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टुडे, एंड इट्स Wow. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, you know, the amazing invention called internet that we are together. But our community members are not only very active, you know, they are also spread all over the country. So you are speaking to people from all over India. Oh, okay. Yes, yes, no, this is big. This is big. Okay, so I think I would like मुझे actually एक question आप सबसे पूछना है, you know, all the viewers, that before I actually start telling you all what self defense is, या मुझे जो लगता है जो self defense होना चाहिए, उसके पहले मुझे आपसे ये question पूछना है that क्या आपके साथ कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है, या आपके दोस्तों के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ कोई हादसा हुआ है जिसको लेकर आपके दिल में डर है, या आपके दिल और दिमाग में कोई डर या यू नो कोई अनसर्टेनिटी या ऐसा कुछ है, तो वो आप प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज सी ये जो सेशन है ये आपके लिए है, तो जब तक आप मुझे कुछ नहीं दोगे तब तक मैं आपको वापस कुछ दे नहीं सकता हूँ. सो यू नो व्हेन यू टेल मी इफ देयर इज समथिंग इन योर माइंड जिसको लेकर आपको यू नो यू आर स्कैर्ड अबाउट समथिंग, आपके दिल में किसी चीज के बारे में कोई डर है, तो फिर वो हिसाब से आई विल टेक द वेबिनार ऑल्सो, एंड वही क्वेश्चन जो आपके है आई वुड रियली लाइक टू आंसर देम टू योर फुल सेटिस्फैक्शन. ठीक है? सो एक्चुअली आई वांट टू आस्क दिस वन थिंग टू एवरीबडी, that what according to you is self defense. मतलब जब भी मैं बोलूं सेल्फ डिफेंस शब्द बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? तो एनी ऑफ द मेंबर्स, अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं और आपको आंसर करना है, तो अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा, एंड यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन. और दानिश जी पूछ रहे हैं हमें कि आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? What do you think is self defense? If you can tell us what is your point of view. अपने आप को प्रोटेक्ट करना. Okay, very good. अपने आप को संभालना जब भी कोई तकलीफ आए. Very good. Okay. अटैक करे आपको तभी. It's a being aware of the dangers. Sorry. अपने आप को दूसरों से सावधान रखना. Okay, तो विजय मैथ्यूज जी ने बोला टू बी अवेयर, अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए. और राजेश शर्मा जी आपने बोला कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, देयर शुड बी नो हार्म, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए. ओके, टू बी अलर्ट in any untoward situation. Okay, Seema ji is saying to be alert. That very important. I think they all have, you know, bits and pieces, and I think we are making the big picture here together. Yeah, absolutely. So whatever आप सब लोग ने जो भी बोला वो सही है. Okay, 100% right. The only one thing is कि जब लोग सेल्फ डिफेंस बोलते हैं तो सबकॉन्शियसली आप ये समझते हो कि मैं डिफेंड, मतलब अगर कोई मेरे को कुछ करता है तो फिर मैं ये करूंगा, है ना? जैसा देयर आर सो मेनी टीचर्स जो बोलते हैं कि अच्छा अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आपको ये टेक्निक करनी है, अगर किसी ने आपका कॉलर पकड़ा है तो आपको ये करना है. तो वो बात भी ठीक है, बट देन मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव सेल्फ प्रोटेक्शन इज दैट हाउ यू डोंट गेट योरसेल्फ इन अ बैड सिचुएशन. सबसे पहले मतलब आई गो बाय द फिलॉसफी ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो वी नो दैट कैंसर इज अ वेरी हार्मफुल एंड अ वेरी डेडली डिजीज, करेक्ट? कैंसर बहुत ही खराब डिजीज है. सो या तो हम रुके कि हाँ हमें कैंसर हो और फिर हम कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट करें, या तो फिर हम अपनी लाइफस्टाइल, अपना जो डाइट है वो उसको चेंज करके वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग कैंसर. तो वही चीज को यहाँ पर लेकर आना है. सो इट्स नॉट कि आई एम गोइंग टू वेट फॉर समबडी टू अटैक मी, या मैं रुकूंगा नहीं कि मेरे साथ कोई बुरा हादसा हो और फिर मैं कुछ करूं, राइट? इट हैज टू बी वेरी एक्टिव. इट कांट बी अ वेरी पैसिव approach. It has to be active. How do I not get myself in a bad situation? And if I do get myself in a bad situation, how do I take myself out of it? मैं अपने आप को वो खराब सिचुएशन में से बाहर कैसे निकालूं?
जल्द से जल्द और विदाउट टेकिंग एनी डैमेज, या कम से कम मुझे चोट पहुंचनी चाहिए, राइट? बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि अच्छा कोई मुझे अटैक कर रहा है और फिर मुझे फाइट करना है और मुझे देखना है कि मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं या नहीं, राइट? दिस इज नॉट, इट्स नॉट एन ईगो गेम, इट इज नॉट कि हमें फाइटिंग सीखना है, राइट? तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ मार्शल आर्टिस्ट, अ लॉट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स, आप जाओगे ट्रेनिंग, अगर कोई वेबिनार ले रहा है, सेमिनार ले रहा है, तो आप क्या देखोगे? वहां पर वो टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला बंदा अगर आपका हाथ पकड़ा है या कॉलर पकड़ा है या पर्स पकड़ा है, तो वो दैट्स ऑलरेडी टू लेट। आपको वो चीज ना हो, आपको वो हिसाब से एक्ट करना है, राइट? तो अगर मैं इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बोलूंगा, हमने टीवी पर डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफिक ऐसा कुछ देखा है, राइट? तो वहां पर जब हम देखते हैं कि शेर शिकार करने निकलता है, तो वो हमेशा 3 टाइप के शिकार ढूंढता है। एवरी टाइम ही लुक्स फॉर ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्रे। सबसे पहला टाइप का शिकार है जिसको अपने सराउंडिंग्स के बारे में कुछ भी, मतलब जो हो रहा है अपने सराउंडिंग्स में उसे कुछ पता नहीं, राइट? सो अगर एक हिरन है या गाय है जो तालाब से पानी पी रही है एंड उसका पूरा फोकस पानी में ही है, और शेर पीछे खड़ा है, और शेर देखता है कि अच्छा इसको तो पता नहीं कि मैं पीछे खड़ा हूं, सो दे विल अटैक दैट प्रे, राइट? तो वो हम पर कैसा लागू होता है? अगर मैं बोलो बस स्टॉप पे खड़ा हूं और आजू बाजू क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, राइट? या तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ, या मैं चल रहा हूँ और नीचे देख रहा हूँ। सो इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग्स, आई कांट डिफेंड व्हाट आई कांट सी, राइट? आप उसी चीज को आप डिफेंड कर सकते हो जो आप देख सकते हो। अगर सामने से कोई वार कर रहा है और मैं वो देख नहीं पाता, सो देन आई कांट डिफेंड माई सेल्फ, राइट? सो नंबर 1 इज अवेयरनेस, एंड आई एम श्योर किसी ने बोला भी था दैट बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड, दूसरे टाइप का शिकार होता है जो झुंड से अलग हो जाता है, राइट? सो इफ यू गॉट अ हर्ड ऑफ काउ और अ हर्ड ऑफ कैटल, और शेर बाहर निकलता है शिकार करने, और फिर हम लोग देखते हैं कि एक गाय पूरे झुंड से अलग हो गई है, तो फिर वो गाय को पकड़ेगा। व्हाई? बिकॉज बाकी का जो झुंड है, द अदर काउज, दे कैन नॉट हेल्प दैट वन काउ, यस और नो, राइट? तो वो हमारे ऊपर कैसे लागू होता है? जब भी हम लोग बोलते हैं कि अच्छा अकेले मत जाना किधर भी, यू वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज समबडी इज देयर विथ यू, या तो फिर रात को सड़क में अगर यू नो सुमसाम जगह पर नहीं जाना अकेला, यू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट? इट्स वेरी जनरल नॉलेज। देन द थर्ड वन, तीसरे टाइप का शिकार ये होता है जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है, राइट? सो इफ यू विल सी एक गाय होगा या एक गाय का बच्चा होगा जो यू नो जिसके पैर में चोट लगी है, तो शेर उसके पीछे भागेगा। क्यों? बिकॉज शेर को पता है कि वो भाग भी नहीं पाती है, वो गाय का जो बच्चा है वो भाग भी नहीं पाएगा, ना ही वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, राइट? सो द मेन थिंग इज कि हमें शिकार कैसे नहीं बनना है, हमें वो पहले देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये टेक्निक या वो टेक्निक, मुझे इसको मारना है, मुझे उसको मारना है, वो सब नहीं करना है हमें, राइट? सो हाउ डू यू नॉट बिकम अ प्रे, दैट इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन इज। मतलब वो मेरे हिसाब से वो होता है, राइट? सो फॉर दैट I would actually like to share my screen if that's possible, if that's okay. Definitely, we can give you the permission to go ahead and share. And for those of you, अगर जो members ने अभी join किया है, those of you have joined us late, we are with Danish Panjwani, and हम आज बात कर रहे हैं about self preservation and self protection. And you know, we are trying to learn like what Danish had told us till now. You know, अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है या आपके ऊपर कुछ हानिकारक होने वाला है, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत लेट हो चुका है। इसके पहले आपको अपने आप को इतने अच्छी तरीके से संभालना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ सो वेल दैट यू डोंट गेट इनटू द सिचुएशन, सो यू रिड्यूस योर चांसेस to Correct. get into a situation, so you reduce yourself getting hurt.
True, All absolutely. right. So we are all with you, Danish, and this is very exciting. I'm sure all our Khayal community members, are very keen to know more about self-protection from you today. Awesome. This is going to be great. So, abhi, jo aap can everybody see my screen? I hope everyone can watch my screen. Yes, I can. Yeah. Okay. Just So- give us a thumbs up if you can see his screen. Okay, great. Awesome. All right. Right. So this is the awareness triangle. Right now, जैसे मैंने बोला कि awareness is the main ingredient. Okay. In the sense कि आप अगर मैं आपको 1000 टेक्निक भी सिखा दूंगा, लेकिन आपका अगर if you are not mentally aware, right, अगर आपको अपना ओपोनेंट नहीं दिख रहा है या जो सामने आपको अटैक करने वाला है, जो भी करने वाला है, अगर आप उसे देख नहीं सकते या आप उसे उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं कर सकते हो, so then you cannot defend against something that you cannot see, right? You can't defend against something you are not aware about. So this is the awareness triangle. Okay, ये चीज this is always in play, ये हमेशा चालू है. हम अभी हमारे घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे, awareness triangle यहाँ पर भी लागू होता है. You know, if you are going out somewhere, वहां पर भी लागू होता है ना. Obviously अगर कोई बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, जैसे ताज का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, द 26/11 अटैक, ना वहां पर ये अवेयरनेस ट्रायंगल बहुत ज्यादा कैसे बोल सकते, इट विल बी टू मच इन प्ले, यू नो, मतलब ये है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, राइट? अभी हम घर पे बैठे हैं तो हाँ ठीक है, इवन इफ हम इसके बारे में कम सोचते हैं, इट इज ओके, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस. ये ट्रायंगल है. सो ट्रायंगल के सबसे ऊपर होता है सेल्फ, मतलब हम, we, right? Because everything starts with you, correct? So self-awareness. Then there is environmental awareness here, and then there is opponent awareness. So self-awareness is हमारे बारे में aware होना, हमारे खुद के बारे में aware होना. Environmental awareness is हमारे आजू बाजू जहां पर भी हम है उसके बारे में aware होना, वो जगह के बारे में aware होना. So this is अगर हम मॉल में जा रहे हैं या थिएटर में जा रहे हैं, so now your environment changes in every place that you go to, right? So अभी मैं घर पे बैठा तो अभी मेरा environment मेरा घर है. अगर मैं थिएटर में जा रहा हूँ पिक्चर देखने, so my environment becomes the theater. अगर मैं मॉल में जा रहा हूँ, my environment becomes a mall. अगर मैं रेस्टोरेंट में हूँ तो the environment becomes my restaurant. Okay, and then the third one over here is opponent awareness. Opponent awareness is जो इंसान आपके आजू बाजू है, right? So अगर कोई मुझे अटैक करने वाला है, so he becomes my opponent, आपके सामने जो भी है, right? So what we will do is we'll start with self awareness, and these are some of the things, ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ जिसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए. ओके ना, दिस इज नॉट ऑल ऑफ इट, ये सब चीज नहीं है, ये खाली थोड़ी बहुत चीजें हैं. सो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ्स मतलब हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, राइट? अगर मैं जिम जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे में ताकत है. अगर मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ये सब टेक्निक्स आते हैं, राइट? सो दीज आर योर स्ट्रेंथ्स. द सेकेंड वन इज वीकनेसेस, राइट? दिस इज जो चीज आपको नुकसान कर सकती है, मतलब आपके खुद के, right? So this would be something like for senior citizens it will be age, right? Because आपकी उम्र ज्यादा है, so उसके वजह से you know you cannot move, you cannot work like a young person, right? So this becomes your weakness. ये थोड़ी बहुत चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होगी. Then you've got state of mind. तो ये is आपका state of mind, कैसे आपको डर लग रहा है, आप nervous हो, आप excited हो, ये सारी चीजें का भी ध्यान रखना होता है. बिकॉज सी, अगर इमेजिन इफ अगर हम ताज में होते जब भी वो टेररिस्ट अटैक हो रहा होता, राइट, तो तभी हमारा स्टेट माइंड कैसे है. सो वहां पर जो बंदों को, जो जब भी एनएसजी कमांडोज आए थे और उन्हें लेकर गए, द हॉस्टेजेस को जो लेकर गए, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड, आर्मी वाले लोग का स्टेट ऑफ माइंड वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हॉस्टेजेस. हॉस्टेजेस डरे हुए हो गए, और अगर इतना डर है आपके दिमाग में कि आप हिल नहीं सकते हो, आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो, सो दैट इज आल्सो अ नेगेटिव थिंग, करेक्ट? तो ये चीज के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है. देन अटायर इज जो आपने पहना है, राइट? आपके क्लोथ्स, आपका फुटवेयर. बिकॉज अगर मैं आपको बोलता हूं कि
the best way to defend yourself from any bad situation is running away, right? अगर आप भागते हो, so that is the best way to do it. But अगर आपके पैर में चप्पल है, so you may not be able to run as fast as you think you can, right? This is something very important. ये तो मैं नौजवान लोग को भी बोलता हूँ, because आप जॉगिंग जाते हो जूते पहन के, लेकिन बाद में अगर आपके साथ कोई हादसा हो रहा है, आपके पैर में चप्पल है, आप उतनी तेजी से नहीं भाग पाओगे, right? So that is also something that you have to keep in mind कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैंने मेरे जूते कौन से है. These little things बोलने के लिए you might be like, अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, and this may not actually make a difference, but it does, right? अगर मुझे भागना है तो I need to know that I can run with whatever I'm wearing. नंगे पाँव भी हो तो फिर मैं भागूं, right? And then you've got body language. Body language is obviously जो आप चलते हो, कैसे चलते हो, बैठते हो, उठते हो, बात करते हो. That is also something which is very, very important. So Danish, I'll quickly just would like to tell you something which I found very interesting when you were talking about this awareness triangle. And some things were very familiar to the activities that we do, हम जो ख्याल community में करते हैं. तो ये आपने जब state of mind के बारे में बात किया है, तो you will be surprised that we are also talking about that. Our community members are aware of it because we are doing mindfulness exercises. तो जिससे हम mindfulness का practice करके हमें हमारा जो state of mind क्या है वो समझ में आता है, तो वो improve होता है. True. और अभी weakness के लिए अगर आप बोलोगे तो हमारे ख्याल community members हर थर्सडे को मिलके योगा भी करते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस है वो भी करते हैं. तो ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड इट इज नाइस टू नो. आई थिंक वी नीड टू जस्ट लर्न सम मोर थिंग्स टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, दानिश के स्टूडेंट बनने के लिए. Yes. No. That's, in fact, I'm very happy because see, realistically speaking, अगर सही बात करूँ तो as you age, जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, हमें बाहर कोई हमें अटैक करे, हमको उस चीज से ज्यादा क्या बोलते हैं, it's not that is what we have to defend against, but mainly it is old age, right? So हमें पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बोन्स वीक होते हैं. So I think you are more susceptible to falling and slipping and having an injury rather than somebody hitting you. So when you are saying कि हम योगा करते हैं, आप सब योगा करते हो, that is very good because you have to even defend yourself not from a third person. कोई आपको अटैक कर रहा है या कोई चोर है, उससे आपको खाली उसे सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जाता है, बट हम अपने आप को हर डिजीज से बचाए. हमारे घर में हम कैसे चलते हैं, अभी यूजुअली बहुत मतलब बुजुर्ग लोग बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, right? So how do you defend yourself against that, because that is also a bad situation. Bad situation हमेशा ये नहीं होता है कि कोई मुझे कोई मुझे मार रहा है या कोई मेरा पर्स लेके गया, right? But bad situation, any bad situation. So over here also, यहाँ पर अभी अगर हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं, तो आप योगा करते हो वो आपका स्ट्रेंथ हो गया, आपका बैलेंस ज्यादा अच्छा है तो आपका वो स्ट्रेंथ हो गया, राइट? अभी जो योगा नहीं करता है, दैट बिकम्स अ वीकनेस फॉर देम कि अच्छा ठीक है मेरे हड्डी कमजोर है या मेरा मसल मास नहीं है, जो भी coordination, these little things. So you actually you nailed it right there. I'm very happy that we brought it together. Okay, so then we've got environmental awareness. Environmental awareness है मेरे आजू बाजू जहां पर मैं हूँ, मेरा लोकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा अवेयर होना. So the first point is entry, right? आप अंदर कहाँ से आते हो, exits, आप बाहर कहाँ से निकल सकते हो. So in case कि अभी जैसे ताज का एग्जांपल लूंगा फिर से, राइट? वहां पर अगर आप ताज में थे ड्यूरिंग दैट टेररिस्ट अटैक, इफ यू न्यू, अगर आपको पता था कि एंट्रीज और एग्जिट कहां पर है, तो अगर आपको भागना था, आपको पता है एग्जिट कहां पर है और आप कैसे निकल सकते हो, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पता है अच्छा ठीक है हम यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं. सो इन केस अगर अभी लियोपोल्ड कैफे में भी when the terrorists came, वो एंट्री से ही आए, करेक्ट? सो इफ इन केस अगर कुछ हादसा होने वाला हो, सो आपको पता है कि अच्छा यहाँ से लोग आ सकते हैं, यहाँ से लोग जा सकते हैं,
राइट, बिकॉज इन केस दैट हैपेंस, आपको पता है कि आपका एग्जिट कहाँ पर है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, अच्छा हादसा हो रहा है, आपको पता नहीं, आप ढूंढ रहे हो कहाँ जाना है, क्या करना है, उसमें यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, करेक्ट। सो Yes. फर्स्ट वन इज एंट्री, सेकंड वन इज एग्जिट। अभी थिएटर में भी यू नीड टू नो वेयर द फायर एग्जिट इज। इन केस अगर आग लगी तो आपको पता है कि आपको कहाँ पर जाना है, आप ढूंढ रहे नहीं हो यहाँ पर वहां पर, कहाँ पर जाना है, राइट। देन द थर्ड वन इज ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स इज कोई भी रुकावट, राइट। सो अगर 3 एग्जिट है, अगर 3 एग्जिट है और आप ऑब्स्टिकल जो रुकावट नहीं देखते हो, तो आपको पता नहीं विच इज द बेस्ट वे टू गेट आउट, राइट। अभी अगर 3 एग्जिट है, मुझे पता है कि एक एग्जिट पूरा खाली है, दूसरा एग्जिट है लेकिन वो थोड़ा दूर है, और तीसरे एग्जिट पे कुछ रुकावट है। सो नाउ विच वन एम आई गोइंग टू टेक, राइट। ओवर देयर मुझे कौन सा लेना है, आई हैव टू टेक द शॉर्टेस्ट फ्री रूट, राइट। So that is again obstacles. Then the next one is potential weapons. This is अगर कोई हादसा हो रहा है, if there is somebody जो आपको अटैक करने वाला है, तो potential weapons, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, और अगर सामने से कोई आता है और आपको गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, एंड इफ ही वांट्स टू फाइट, राइट, अगर उसे फाइट करना है और उसके पास 2-3 लोग हैं ना, अगर आपको अपना डिफेंड करना है अपने आप को, और अगर सोचो अपने आप को फाइट करना पड़े, राइट, आपको फाइट करना पड़े, तो टेबल पे क्या है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो पोटेंशियल वेपन, एंड पोटेंशियल वेपन कैन बी एनीथिंग। पेन हो सकता है, आपकी छड़ी हो सकती है, अम्ब्रेला हो सकता है, प्लेट हो सकता है, देयर इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपका सेलफोन, सब लोग के पास सेलफोन है, दिस इज अ वेपन, दिस इज अ पोटेंशियल वेपन इफ यू नो हाउ टू यूज इट, राइट। सो दिस इज समथिंग ऑल्सो दैट यू वांट टू कीप इन माइंड। क्या मेरे आसपास कोई चीज है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी सुरक्षा करने के लिए, या तो उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ भागने के लिए या कुछ भी करने के लिए, राइट। सो दैट बिकम्स पोटेंशियल वेपन्स। Then the last one is emergency equipment. Okay, this is whether you are talking about your what do you call that? Fire extinguisher ho jave. That is one thing. You have got जो fire का axe होता है, that is another thing, right? All these little things आपको ध्यान में रखना है. So whenever you go anywhere, आप कहाँ पर भी जाते हो, if it's a new restaurant, if it's a new mall, if it's a new थिएटर, तो आप खाली है ना एक टाइम नजर मार लो कि एंट्री कहां पर है, एग्जिट कहां पर है, ऑब्स्टिकल्स कहां कहां है। तो इनकेस अगर मुझे भागना पड़े तो फिर मुझे पता है कि यहां से जाओ, वहां से जाओ, वहां से जाओ, कहां से जाना है, राइट। एंड देन ऑब्वियसली योर पोटेंशियल वेपन्स एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट। तो इनकेस अगर आग लगती है, सो यू नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर इज, राइट, आपको पता है वो कहां पर है। इनकेस अगर आपको किसी की जान बचानी पड़ी, so then you know where you have to go and take whatever equipment is necessary, right? So this becomes environmental awareness. Is this clear, or do I have to explain? Yes, Danish, I think it's pretty clear. हमें समझ में आ रहा है अब तक. But I have one question. और मुझे एक आपसे एक डाउट पूछना है कि आप देखो, आप बोल रहे हो कि मुझे ये एंट्रीज देखना है, आई शुड नो अबाउट द एग्जिट और ऑब्स्टिकल्स. तो मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, ओके, कि अगर मैं इतना ऐसे टेंशन लेके जाऊंगा कोई रेस्टोरेंट में, तो मुझे मजा कैसे आएगा रेस्टोरेंट में मेरे दोस्तों के साथ. ओके, तो दिस इज इज दैट रॉन्ग दैट आई एम थिंकिंग, या I should know that my protection is in my hands and I am responsible for my own self preservation, और मुझे ही अपनी देखभाल करनी है, या मुझे बोलना है अरे कुछ नहीं होगा. This is a state of mind. आपको क्या लगता है? I get it. तो इनफैक्ट इसके बारे में बहुत ही एक फनी स्टोरी है. When I started my training in Kali, जब मैं मेरी ट्रेनिंग शुरू किया था ये मिलिट्री वॉरफेयर की, तो जब भी मुझे ये सब सिखाया जा रहा था, तो मेरे दिमाग में भी वही ख्याल था, अरे अगर मैं ये सब चीज के बारे में ध्यान रखूंगा तो फिर मैं मजा कभी करूंगा. एंड इनफैक्ट मेरे साथ एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि मैं रेस्टोरेंट में गया था डिनर करने के लिए, अकेला गया था, और जो वेटर था मुझे एक टेबल पर बिठा रहा था. मैं बोला नहीं, मुझे ये टेबल पर नहीं बैठना, मुझे वो टेबल पर बैठना है, बिकॉज वहां से मुझे सब दिखता है.
एंड यू नो ही वाज लुकिंग एट मी, मुझे देखकर वो बोल रहा था ये मतलब ये इंसान ऐसा कैसे बात कर रहा है. तो हाँ, स्टार्टिंग में वैसा आपको लगेगा कि यू नो मैं बहुत ही टेंशन ले रहा हूँ और यू नो ये बहुत बहुत सारी चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, लेकिन जैसे जैसे आप ये करते हो इट बिकम्स वेरी सेकंड नेचर. यू नो अभी मुझे इतना ध्यान भी नहीं रखना पड़ता, मुझे पता है कि अच्छा ठीक है ये इधर है. सो सी हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा. तो फिर अभी जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा कभी लगता नहीं कि अरे मैं इतनी सारी चीजें देख रहा हूँ या मैं हर इंसान को देख रहा हूँ ऐसे. यू नो अभी वो मेरे साथ नहीं होता. इनफैक्ट दानिश यहाँ पर है मेरे स्टूडेंट, ही ऑल्सो वॉज फेसिंग द सेम थिंग. वो भी मेरे को बोल रहे थे कि यू नो मैं इतना टेंशन लेता हूँ, बट देन मैंने उसको वही बोला कि नहीं, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा द मोर यू आर अवेयर अबाउट दिस it becomes very second nature. You don't have to think about it. And you become more confident. And you become more confident. Me? No, I mean, if अगर हमने ये किया practice, तो क्या हम it will, जैसे आपने बोला, this will become second nature. Absolutely. अपने आप से आ जाएगा और उसके बाद हमें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कहीं पे. Absolutely, absolutely. Because फिर आप देख सकते हो, right, कि क्या होने वाला है. आप एंटिसिपेट कर सकते हो, आप गेस लगा सकते हो कि अच्छा नहीं, ये मुझे लगता है ये बराबर सिचुएशन नहीं है, मुझे इधर से निकलना है, या मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे इधर से निकलना है. सो 95% of all the bad situations can be avoided by just being aware. All right. Okay. That's a big figure. That's it is huge. In fact, I'll be getting to that in the next slide. All right. Right. And okay, so environmental awareness is clear, right? Yes. Okay, then I'll go to opponent awareness. This is आपके सामने जो भी खड़ा है, मतलब जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो इतने सारे लोग हैं, राइट? तो आपको उनके बारे में भी थोड़ा बहुत मतलब उनको नोटिस करना है, उनके बारे में अवेयर होना है कि अच्छा मेरे सामने से अच्छा ये बंदा गया, ये बंदा गया. नाउ फॉर दैट ऑल्सो जो भी हमने सेल्फ अवेयरनेस में देखा है वही सब चीज आपको ओपोनेंट अवेयरनेस में भी देखनी है. नाउ हाँ ठीक है, अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि मैं कैसे जानता हूँ कि सामने वाला योगा करता है कि नहीं करता हूँ, नहीं या नहीं करता, राइट? उसके स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस क्या हो गए, हाउ डू वी नो? बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सामने से, अगर मेरी हाइट बोलो 5 फुट 9 इंच है, ओके, और सामने वाला अगर 7 फुट का है, तो मुझे पता है ना कि वो मेरे से बड़ा है साइज में, तो फिर मुझे पता है कि मैं उसके साथ फाइट करने जाऊंगा तो वो मुझे आराम से मार सकता है. यस और नो? सो दीज, ये छोटी छोटी बात, यू नो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. अभी अगर वो इतना बड़ा है तो आपको पता है कि बिकॉज ही इज सो बिग, उसका वेट भी ज्यादा हो गया. अगर उसका वेट ज्यादा होगा तो फिर वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा इतनी तेजी से. ही वोंट बी एबल टू रन एज फास्ट बिकॉज ही इज दैट बिग. तो फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा मुझे इसको फाइट नहीं करना, मैं यहाँ से भागूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अरे उसे फॉलो, मतलब अगर वो मुझे फॉलो करेगा तो उसको टाइम लगेगा बिकॉज ही इज बिग, ही इज हैवी. सेम थिंग, उसका अटायर, उसने क्या पहना है. अगर आप जूते में और अगर वो चप्पल में है तो आपको पता है कि आप और तेज भाग सकते हो एज कंपेयर टू योर ओपोनेंट, राइट? तो सामने अगर उसके हाथ में कोई चीज है जो वो यूज कर सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है आपको मारने के लिए या आपको चोट पहुंचाने के लिए, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू सी. ऐसा नहीं कि अच्छा मैंने इसको देखा, हाँ ठीक है, उसके हाथ में क्या है, वो कितने डिस्टेंस पे आपसे खड़ा है, कैन ही टच यू, कैन ही नॉट टच यू, ये सब छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है. सो दिस इज अपोनेंट अवेयरनेस. तो ये जो अवेयरनेस ट्रायंगल है, दिस व्हेन द होल थिंग कम्स टुगेदर, दिस इज टोटल अवेयरनेस. Okay. Danish, we have one of our Khayal community members who's raised their hand. So can we take a quick question Yeah, now? absolutely. Yeah. Hi, good evening. Actually, actually not. I am not asking a question. Like before this, we were talking about the environment. We were talking about the environment, our surroundings. So it like how it is कि कोई होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टेंशन में कहाँ बैठे, कहाँ से सब दिखेगा. Actually, it becomes a part of your habit. Yeah, like how it is, जब हम घर में हमें खाना मिलने वाला है, हम टेबल पे खाना खाने वाले हैं, तो we really don't have to search for the spoon or the fork or the plate or the bowls. It comes, we take it ऐसे, मतलब सोचना नहीं पड़ता.
आदत True. पड़ जाती है. That's what, if you practice from now, in some time it will be your habit. फटाफट से you will visualize and you know कि अब क्या करना है. That's what Absolutely. was my point. I wanted to say that way. Thank you. I think it's a very valid point, ma'am. Very well. Thank you very much for that. Thank you. All right. We also have some questions in the chat, and I'd like to take one or two questions now. We have Mr. Matthews who's asking that you should also be very aware of what someone would like to take from you. आपसे क्या कुछ कोई चोरी करना चाहता है, True. जैसे कि आपकी वॉलेट या आपका वॉच, वो you have to be aware Absolutely. of that. And किसी ने पूछा है कि is this also okay to carry pepper spray with you? Is Yeah, it absolutely. legal in our country? Yeah, it is. It is. Pepper spray is, you can't carry a knife, you can't carry any other self-defense tool, but pepper spray, yes, it is. I actually, in fact, I have a couple of my colleagues who are women, and they do carry pepper spray. So yes, in fact, I will be getting to that also, self-defense tool. All right. You can use, right? But yeah, that is actually a very, very, very good question. All right, so we'll let Danish continue with his presentation. I know we are bubbling with questions right now. हमको बहुत सारे questions पूछ रहे हैं, तो सारे questions हम दानिश जी को we'll ask him towards the end of the session. Yeah, awesome. All right. Okay, now this is something that I want to speak about, the 3 defensive zones. Okay, the 3 defensive zones है, जिसको पार करना है, मतलब I mean your opponent, आपके opponent को ये 3 defensive zones पार करने होते हैं आपको पहुंचने तक. Okay, so the first one is, जैसे आप देख सकते हो, D1, D2, D3. D1 is in green, मतलब ये है, this is okay. This is where the 95% of your situations you can avoid. This is 95%, the green one, the D1. D2 is yellow. यहाँ पर 3% तक, there are chances of you getting till here. And then the last one is only 1 or 2%. Okay. So D1 is detect and evade. Detect and evade very simply उसका मतलब होता है देख के भाग जाना. Right? अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खतरा है, मैं भाग गया. Very simple. है ना? This is not over complicated. अगर मैं देख रहा हूँ कि सामने से अगर कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं भाग जाऊंगा. Yes. अगर मैं देखता हूं कि अच्छा, सोचो कि मैं मेरे घर से निकल रहा हूं, ओके, मैं गेट पे खड़ा हूं और 2, या तो आई कैन गो लेफ्ट और राइट. अच्छा, मुझे कहां पर पहुंचना है और मुझे ऑटो चाहिए. अभी मैं देखता हूं कि लेफ्ट पर एक ऑटो ऑलरेडी खड़ी है, लेकिन वहां पर लौंडे खड़े जो दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, और बहुत ही It doesn't look like a safe environment. It doesn't look like a safe environment, right? और फिर आप राइट साइड पे देखते हो कि अच्छा, वहां पर एकदम अच्छा बिजी स्ट्रीट, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत हलचल है, लेकिन वहां पर ऑटो मिलने के लिए मुझे 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, राइट? सो नाउ आप कहां पर जाओगे? लेफ्ट साइड पर जाओगे कि राइट साइड पर जाओगे? राइट साइड पर जाओगे, ऑब्वियसली. यस. तो दिस इज ऑल्सो अगेन डिटेक्ट एंड एवेड. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर ज्यादा खतरा है, यहाँ पर कम है, तो फिर जहां पर भी कम खतरा है मैं वहां पर जाऊंगा, राइट? वेरी सिंपल. लेकिन यहाँ पर ये सिंपल है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है. अगर मैं देख रहा नहीं हूं, अगर मैं देखता नहीं कि अच्छा ये यहाँ पर 5 लोग हैं और वो दारू भी पी रहे हैं, हाँ, उनको होश नहीं है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, सो देन आई विल प्रोबेबली गो देयर. मैं वहां पर शायद जाऊंगा, बिकॉज मैं अवेयर नहीं था सिचुएशन के बारे में, राइट? Okay. So detect and evade, very simply देखकर भाग जाना. D2 is diffuse and de-escalate. This is आप बातों बातों में सुलझा देना जो भी प्रॉब्लम है, राइट? अगर मुझे कोई बोलता है कि यार ये मेरी पार्किंग है, नहीं, मैं वहां पर जाके खड़े रह के उसके साथ झगड़ा नहीं करने वाला. नहीं, ये मेरी पार्किंग है, मैं पहले देखा था. नो, आई एम नॉट गोना डू दैट. अगर मेरे साथ मेरी बच्ची है या मेरे माँ बाप है जो बुजुर्ग है, मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता हूँ, बिकॉज वो मुझे अटैक नहीं करेगा, वो मेरे माँ बाप को अटैक करेगा. इज दैट राइट और इज दैट रॉन्ग? Correct. So you have to protect the people around you. Yeah, you have to protect your people as well. तो मुझे यहाँ पर ईगो नहीं चलता है सेल्फ प्रोटेक्शन में. ये नहीं कि अरे मैं तो बोलूंगा, मैं तो 20 साल से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो अभी इसको पकड़ के मारने वाला. नहीं,
बिकॉज अगर उसने अपना हाथ अपने आपके माँ बाप के ऊपर डाला या आपकी बच्ची को ले लिया, तो आप जो भी जितने भी ब्लैक बेल्ट है, जितने भी कंपटीशन में आपने ट्रॉफी जीते, वो सब खाक हो जाते हैं. यू विल जस्ट बी लाइक, अच्छा भाई तो मेरे को बोल क्या चाहिए एंड व्हाटएवर, यू नो, सॉरी एंड मूव अवे, राइट. लेकिन ये बहुत ही कम होता है. दिस इज जब भी आप अपने आप को, अगर D1 फेल हो जाता है, अगर आप कोई भी खराब सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हो या उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, देन आपको शायद बातचीत करके आपको सुलझाना पड़ेगा, राइट. नाउ व्हाट इफ D2 आल्सो फेल्स? मैं बातचीत कर रहा हूं लेकिन भाई वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, देन यू विल हैव टू फाइट. और ये चीज आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ओके. बट दिस इज आल्सो मे बी 1 or 2%. ये होता नहीं है. दिस इज वेरी 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 रेयर कि ऐसी कोई चीज आपके साथ होगी. बट जस्ट इन केस, इफ यू वांट, यू कैन गो. आप कोई भी ट्रेनिंग, यू नो, कोई भी टीचर है, आप वहां पर थोड़े बहुत टेक्निक्स सीख सकते हो. बट दैट इज नॉट द मेन प्रायोरिटी. मेन प्रायोरिटी इज अवेयरनेस, और आपको कोई भी बुरे सिचुएशन में नहीं जाना है या नहीं पढ़ना है, राइट. दैट इज व्हाट द main thing is, right. So I just have these 2 slides. I will what do you say, I will talk a little bit more about that also. So if we were talking about, say, body language, right. Abhi body language बहुत ही मैं रास्ते पे भी, राइट. बिकॉज सी, आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जो भी बंदा आपको चूज करता है, अगर इफ आई वांट टू क्रिएट, इफ आई वांट टू व्हाट डू यू से, इफ आई वांट टू रॉब यू, अगर मुझे आप कोई भी आपको, यू नो, आपसे चोरी करना है, ऐसा कुछ करना है, तो आई हैव ऑलरेडी चोजन यू. मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कितने अवेयर हो, आप कितने अवेयर नहीं हो, और फिर मैं आपको चूज करता हूँ, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द प्रेडेटर मेंटालिटी इज लाइक दैट, कि लोग आपको देखते हैं, वो पहले आपको फॉलो करेंगे 2-3 दिन, आपको देखेंगे. अगर आप लोकल हो, यू नो, ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तो वो आपको देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड, अच्छा ठीक है, इसको हमको, यू नो, जो भी अगर करना है, नहीं करना है, दैट इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट देन. सो आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कमजोर हो, बिकॉज अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं कमजोर हूं, तो फिर वो बोलेगा हाँ, इसको तो हम आसानी से झपट सकते हैं, राइट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको, यू हैव टू लुक स्ट्रॉन्ग, राइट. आपको दिखना है कि आप कंट्रोल में हो, आप जानते हो कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, ताकि सामने वाला देखेगा और बोलेगा नहीं, मुझे इसके साथ या मुझे इसको अटैक नहीं करना है, राइट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डी-एस्केलेटिंग, जो बातों बातों में जो हम यू नो जो सुलझाना होता है, अभी उसमें भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से बात करते हो. अभी अगर मैं सामने अगर बोलूंगा नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर वो बोलेगा कि ये कमजोर आदमी है, राइट. सो इवन ये छोटी छोटी बातें जो बॉडी लैंग्वेज बहुत, I don't know how am I supposed to put this, but body language is thing कि a lot of people judge, a lot of the criminals judge you based on your body language, right. तो अगर आपकी body language strong है, तो फिर there is a very good chance कि वो बंदा आपको target नहीं करेगा, right. अभी अगर मेरे हाथ में छड़ी है, तो फिर सामने वाला दो मिनट के लिए सोचेगा ना कि मैं आके इसको कुछ करूं, yes or no, right. So when you're talking about pepper spray भी आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस देता है कि ओके नहीं, मैं जा सकता हूं किधर भी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस दिख के आता है, एंड देन द पर्सन विल बी लाइक, अच्छा नहीं, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज डूइंग, एंड सो देन आई डोंट वांट टू मैस विद दिस पर्सन, मुझे इसे टारगेट नहीं बनाना है. दानिश, ऑल्सो अगर आप हमें बता सकते हैं कि ये पेपर स्प्रे जो होता है, वो कैसे मिलता है, कैसे उसको हम खरीद सकते हैं और उसको यूज कैसे करना है. क्योंकि मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ कि मैंने एक बार पेपर स्प्रे किसी के पास में देखा था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और मुझे आई वाज इंटरेस्टेड टू नो क्या है, तो मैंने उसे ऐसे हाथ लगाया और मैंने रख दिया. उसके बाद मैं कंप्लीटली भूल गया उसके बारे में.
कि मैंने पेपर स्प्रे को हाथ लगाया था और मैंने गलती से मेरे आंखों में अपनी उंगली डाल दी होगी या कुछ मैंने कर दिया होगा और मेरी आंख बहुत ज्यादा जलने लगी। तो मेरे हिसाब से उसका जो हैंडलिंग भी है पेपर स्प्रे का, इफ इट इज नॉट हैंडल प्रॉपरली, हमें ही उसका शिकार बनना पड़ सकता है। ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप पूछ रहे हो कि कहाँ पर मिलता है, वो तो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पर कहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, लेकिन केमिस्ट में भी मिलता है, राइट? केमिस्ट में भी मिलता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर पेपर स्प्रे, हर कंपनी का अलग अलग स्ट्रेंथ्स के साथ आते हैं। सो देयर आर सम पेपर स्प्रे जो बहुत कमजोर होता है, जिसकी जलन इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट देन देयर आर सम जो, फिर जैसे आपने बोले कि आपके आंख में आपकी आंख जलने लगी, सो दैट मस्ट हैव बीन अ रियली स्ट्रांग वन। ओके, राइट, सो दैट इज वन थिंग, वो आपको देखना है, वो आपके मतलब जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में होगा वो आपको पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट विच एवर वन यू आर बाइंग उसकी स्ट्रेंथ क्या है। राइट, दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज उसका हैंडलिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, द हैंडलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप स्प्रे करोगे सामने वाले के ऊपर, राइट, नाउ सी ओवर हियर आल्सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अगर हवा दूसरी तरफ चल रही है, अब आपकी तरफ चल रही है, तो आपका जो पेपर स्प्रे आप जो यूज करोगे वो आपके खुद के आंख में जाएगा। ओके, right, so this is very important. Awareness is very 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 important, right? So when you are even going to spray, the person has to be within 6 feet, 6 फीट के अंदर उसको होना चाहिए कि आप पेपर स्प्रे यूज कर सकते हो, बिकॉज 6 फीट के बाद जो पेपर स्प्रे का जो जैसा द ट्रिजेक्टरी जो लाइन में जाती है वो हट सकती है, राइट? सो जितना पास है बंदा उतना बेहतर है, बट देयर इज ऑल्सो अ चांस कि वो आपके मुंह पर भी लगेगा। सो व्हेनेवर यू हैव टू स्प्रे द पेपर स्प्रे, आपको ऐसे रख के आपकी आंख और आपका नाक कवर करके आपको स्प्रे करना होता है। यू कांट स्प्रे जस्ट लाइक दिस, बिकॉज उसकी जो you know whatever ingredients they use, जो भी chemical and ingredients they use, they are very 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 strong and very 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 powerful. okay, right, so handling, yes, handling is very very important. In fact, in Kali, right, we treat the pepper spray as if we were treating a gun. तो पेपर स्प्रे जैसी चीजें या कुछ भी ऐसी चीजें है जो हम अपने पास रख सकते हैं? So one is pepper spray. This is very important. Second one is ball pen. Ball pen भी बहुत ही क्या बोलते हैं, dangerous हो सकता है if you know how to use it. So for example, देखना if there's a pen somewhere. See in my room. So the pen, उसकी जो tip है, right, that acts as the point of a knife, right? Because the point of a knife is also sharp and the pen is also sharp. So if you take a ball pen, अगर आप कोई भी अच्छी बॉल पेन लेते हो और अगर आप अपने आप को इधर सिर पे अगर टच करोगे तो आपको पता है कि बहुत जोर से लगने वाली है। So in very extreme cases, बहुत ही extreme condition में आप अगर ये देखते हो, the pen, right, the nib, this is very dangerous. If you can hit somebody in the eye, this is very very powerful, right? अभी now, you know, just to give you an example, अगर आप सड़क पे चल रहे हो and अगर बहुत तेज हवा चलती है and कोई डस्ट आपके आंख में चले जाता है, तो आपकी आंख में से बहुत पानी निकलता है, right? It becomes very hard for you to see. आपको देखने को, you know, प्रॉब्लम होती है। तो आप अभी इमेजिन कर सकते हो कि if you hit somebody with a pen in the eye, that be very 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 dangerous. Again, ये आपको खाली life and death situation अगर ऐसा कुछ होता है, then is when you have to use this. ऐसा नहीं कि कोई मुझे गाली दे दिया और फिर मैंने उसको पेन लेके मार दिया, you know. So the pen is there, then your cell phone is there. This is very very hard. जो आपकी the bridge of the nose, ये जो छोटी हड्डी होती है नाक की, ये बहुत ही कमजोर होती है। So when, if you can hit with this part of the phone to this nose, you can break the nose. So if you break the nose,
तो फिर भी आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज द पेन इज टू मच. Okay, Right. so this is all to be done only as the last situation. Last resort, yes. जब आपकी जान खतरे में हो तभी. Yeah, absolutely. Okay. Right. Then you've also got the stick. Your walking stick is there. Your umbrella is there, because now anything that you can hold and hit is a weapon. Right. But you know, if you've got a stick, if it's a really hard stick, then if you hit somebody in the head, obviously you know that you're going to hurt the person. राइट. तो ये थोड़ी थोड़ी जो भी चीजें हैं, अभी ऑब्वियसली स्टिक तो सामने वाले को दिखता है, लेकिन पेन अगर आप हाथ में रखोगे तो कोई सोचेगा नहीं कि आप इसके साथ इतना डैमेज कर सकते हो. राइट. सो यू गेट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि सामने वाले को पता नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं होगा कि अरे सामने वाले को पेन इस्तेमाल करना आता है अब की, मतलब अपनी जान बचाने के लिए. राइट. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल सर्टेन थिंग्स. आपका फोन हो गया, आपका पेन हो गया, पेपर स्प्रे हो गया, आपकी छड़ी हो गई, अम्ब्रेला अगर आप लेके जा रहे हो, इज द सेम थिंग. somebody said लाल मिर्ची पाउडर, yes, that is also correct. But okay, so these are like something which you need to use only when you know someone has already attacked you and you have to save yourself, and as a last ditch effort, Yeah. आपकी जान एकदम खतरे में है और आपको अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना पड़े. ठीक है. तो ये इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि लोगों के पास एक टाइप का अलार्म होता है या एक सीटी होती है जिससे बहुत आवाज आता है, और व्हाट इज दैट, हाउ डज दैट वर्क? सी ऑनेस्टली अगर मैं सच बात बोलूं तो ठीक है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो आवाज आएगी और फिर क्या होगा? What happens then? Right. For example, I would actually like to bring my student out for this. I hope everybody can see this. I hope everyone can see. Yes, hello, and let me introduce Danish's student. His name is also Danish. तो दोनों दानिश है हमारे साथ आज. Hi, good evening, Danish. Warm welcome, and thank you for being there and हमें ये बताने के लिए thank you very much. Okay, so when you are talking about the alarm, right? अब अलार्म के बारे में बात करें. अच्छा ठीक है, अभी अगर दानिश मुझे अटैक करने वाला है, ओके, मेरे हाथ में अलार्म है, मैंने अलार्म दबाया, आवाज क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या वो रुकेगा? Okay. See, the main question is that, right? अभी अगर मैं पेपर स्प्रे की बात करूं या पेन के बारे में बात करूं, let's take the pen for example. Okay, अगर वो मुझे अटैक करने वाला है and if I hit him, वो वहां पर रुकेगा ना? He will stop his first initial attack. Yes. Right? वो alarm, if I'm going to press the alarm, is that going to stop him? क्या वो रुकेगा अगर मैं alarm press किया? तो उससे अच्छा तो मैं चीख भी सकता हूँ ना? It's the same thing. मैं चीख अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन will he stop? दानिश, जैसे आपने चीखने की बात की है, very interesting. Yeah. तो बहुत बार क्या होता है ना, I have heard this from people that they say that they froze. इसका मतलब क्या होता है कि मैं froze. People say that they अगर किसी ने अटैक किया तो वो ऐसे they become like deers in the headlights, Yeah, absolutely. वो क्यों होता है हमारे साथ? और तो हाँ, so what we have is that we call that the flight or fight syndrome, right? Now हमारा brain जो है, whenever there is any stressful situation, हमारे बॉडी में certain hormones होते हैं जो secrete होते हैं, right? So you've got cortisol, that's a stress hormone. You've got adrenaline, that's a stress hormone. तो ये जो भी सब stress hormones होते हैं, वो आपके बॉडी में secrete होते हैं ताकि आप वो dangerous situation को combat कर सके. But then what? कभी-कभी ऐसा होता है कि वो situation बहुत ज्यादा ही overwhelming होती है, जिसके वजह से लोग freeze हो जाते हैं. So that again has to. I can't hear you. I think तो ये natural प्रक्रिया है. Yes, this is a natural. हमारे बॉडी में होती है और हमारे बॉडी में से ये एंजाइम्स निकलते हैं जो हमें मदद करते हैं टू टेक केयर ऑफ अ सिचुएशन. अगर कुछ बहुत सडनली हो जाए तो हमें सडनली ये इमीडिएटली तैयार कर देते हैं, ये पदार्थ जो रिलीज होते हैं. बट अगर सिचुएशन बहुत ही गंभीर है तो ये क्या होता है कि हम फ्रीज हो जाते हैं.
ट्रू। तो जब बोलते हैं कि ट्रेनिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग बिकॉज आप अपने आप को वही सिचुएशन में बार बार डाल रहे हो कि आपकी बॉडी को, या आपको पता है कि आपके स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा, ये तो मैंने ट्रेनिंग में किया है, सो इट इज नॉट सो ओवरवेलमिंग, आपको इतना डर नहीं लगता है। तो फिर आप अपने जो भी वो हॉर्मोन्स रहते हैं, आप उसका सही इस्तेमाल करके, राइट, यू कैन एक्चुअली एम्ब्रेस एंड हार्नेस द पावर ऑफ दोज स्ट्रेस हॉर्मोन्स एंड यू कैन फाइट। फिर आप उस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ये तो ऐसे ही हो गया जब मैं स्कूल में कोई एग्जाम के लिए जाता था। अगर मैं पढ़ के गया तो ठीक है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। अगर मैं पढ़ के नहीं जाता था तो ऐसे ही मैं डर जाता था। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। ये, और मैं डर के फ्रीज हो जाता था। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन हो भी सकती है, और अगर ऐसे सिचुएशन आई हमारे सामने इन रियल लाइफ तो हमें क्या करना चाहिए टू मिनिमाइज, सबसे कम हमें जो हार्म हो पाए। ट्रू। Okay. So, so because we are all senior citizens, हम, we are right now, हमारे जो community members है, we are in the mode of enjoying ourselves, एब्सोल्युटली। relaxing, playing games, singing songs. But ये तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा भी, I'm sure our senior citizens and our ख्याल community members, उनको भी ये चीजों में अभी बहुत इंटरेस्ट आएगा आपके साथ इतना सब बात करते, क्योंकि ये हम सोचते नहीं है। हम नॉर्मल लाइफ में सोचते नहीं है। जब तक कोई हमें कोई एक्सपर्ट आके या कोई डॉक्टर आके ये बता के नहीं जाता, और फिर हम सोचते हैं यस, ये बहुत अच्छी चीज है, हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमारी लाइफ में। करेक्ट, करेक्ट। इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बाहर वेबसाइट्स पर, Amazon हो या फ्लिपकार्ट हो, देयर आर, मतलब बहुत सारी चीजें जो बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस टूल होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने बोला वो अलार्म के बारे में, देयर आर सो मेनी सेल्फ डिफेंस टूल जो खाली नाम के होते हैं। आप उसमें पैसे डालोगे, इट विल नॉट हेल्प यू, राइट। तो स्टिक टू द सिंपल थिंग्स। अगर कोई आपको कुछ बहुत ज्यादा अगर बोल रहा, अरे बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ज्यादातर टाइम वो नहीं चलेगा, राइट। इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, एंड लोगों को पैसे चाहिए, वो उसमें कुछ भी बेचते हैं। So that is something which you have to be again aware about. Okay, it's just like selling you snake oil, there is nothing. Yeah. Yeah, Yes. absolutely. Are there any more questions? I would actually really like questions. Okay, so हम हमारे members को अभी opportunity देंगे. If you have any questions, अगर आपको कुछ questions है दानिश को पूछने के लिए, because दानिश ने हमें main चीज बताया कि 95% जो सिचुएशंस आती है हमारे तरफ, हम वो 95 सिचुएशंस को सेल्फ अवेयरनेस के साथ ही हम उसे मिटा सकते हैं। अगर हमें पता है, हम सोच के जाएंगे ये सब चीजें जो दानिश ने हमें बताया था अबाउट सेल्फ, अबाउट एनवायरनमेंट और अबाउट द ओपोनेंट, अगर ये हम ध्यान रख के सोच के आगे जाते हैं, और हम जितना सोचेंगे ये अपने आप से हमारे अंदर इंटरनल हो जाएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये अपने आप करते रहेंगे, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर हम कोई सिचुएशन में आ जाते हैं बाय चांस, तो वी आर एटलीस्ट रेडी। हम मेरे जैसे नहीं कि मैं बिना पढ़े एग्जाम के लिए चले गया था, तो ऐसे डर नहीं जाएंगे हम। True, yes. ओके, तो इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। चैट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अगर किसी को पूछना है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वन बाय वन you can definitely ask Danish these questions. He's here to answer your questions. अगर किसी को पूछना है तो। Yeah, is it safer to be active or passive in a situation where you can't run away? So if you're more active, say you're being there are 10 people in a bank or something like this, bank robbery. Yeah. So is it better to be active or passive? Now, sir, if you are saying that if there are 10 people, then we all know that you can't fight 10 people, right? So no, I mean 10 customers, and there's a person who comes in. So he may target the person who is active, because the people who are passive, he won't care about. But if you're active in that situation, then he would attack you to keep you quiet. True, absolutely. So that is when the training does come into play, right? That's why you've got law enforcement who have a very different sort of training than what you might get in a normal self-defense class. Like if I'm teaching, so I've even
trained private security. So when I'm teaching them, it's very different from what I'm teaching y'all. So I do understand what your question is, and it honestly, it depends on the situation. If you think that it is going to be better off where you can actually negotiate and talk to the person and get done with the situation without having to engage, then that's obviously much better every single time. Because you have to understand that there are people waiting for you at home, and they don't want you to be cool or be the tough one and lose your life in the process. So always it is always better to not fight and get yourself out of the situation. You don't want to be passive. You don't want to just sit there and hope that things turn out. Yeah, so I think, Danish, this is very much akin to, how Sun Tzu had said that, the person who doesn't get into a fight, okay, who can avoid a confrontation, is the winner of the fight. Correct. अगर आप किसी के साथ झगड़ा ही नहीं करेंगे, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे ही नहीं, तो आप वो फाइट जीत गए. करेक्ट. क्योंकि आपने अपना दिमाग यूज किया है वो टाइम पे. Correct. But obviously the dynamics, sorry, I'm so sorry to cut you off, but No, see, go ahead. The dynamics changes if you have to protect somebody. If it's the same bank robbery, okay, now you have your, say, 2-year-old daughter with you. Yes. Now you have to protect your daughter. So now you might have to do things a little differently than what you may have to do if you are alone or if you are with a friend. So honestly, I can say that this is the right answer, but there is no right answer. There is no definitive right answer. It all depends on the situation that you are in. What is your environment? If you think ki haan theek hai, wo bank robbery ho rahi hai, the robber is looking somewhere else and I can get out of from the behind exit, do that. You don't need to fight. But now if your 2-year-old daughter is there, your daughter can't run as fast as you. So now you know that you have to pick her up and run with her. Is that going to slow you down? Is that going to result in you getting caught and then the robber doing something to your daughter, right? So it's, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है. yeah, और वो वक्त पे जब होता है तब आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए जल्दी से, और आपको फिर डिसीजन लेना चाहिए. true. और अगर आपने पहले ही फॉर एग्जांपल दरवाजा देख लिया है या क्राउड देख लिया है या देखा है कि यहाँ से मुझे और थोड़ा सेफ्टी मिलेगा, तो आपको वो जो चंद सेकंड या चंद मोमेंट्स मिलती है वो सिचुएशन में, वो आपको और बचा सकती है, बचाने के आपके चांसेस और इंक्रीज करती है. ओके, तो इसलिए whenever I said कि environmental awareness, आप जहां पर भी जाते हो तो एक टाइम आजू बाजू नजर मार लो कि क्या कहां पर है. So that क्या होता है, sometimes you just have a few seconds, आपके पास कई सेकंड ही होते हैं आपको डिसीजन बनाने के लिए. So आपको अगर ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका और भी क्विक हो सकता है. इट कैन बी मच फास्टर एंड देन यू नेवर नो, आप अपनी भी जान बचा सकते हो और आप किसी और की भी जान बचा सकते हो, राइट? ओके. और ये सिल्विया जी ने हमें पूछा है जो हमारी मेंबर है. यस, सो सिल्विया जी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द चैट. कोई टेक्निक आप बता सकते हो अगर कोई आपका बैग खींच रहा है तो? Oh wow, this is lovely. I love this question. Okay. In the beginning, I don't know if Sylvia ma'am was there in the beginning when I said कि अगर कोई आपका हाथ पकड़ता है या कोई आपका कॉलर पकड़ता है या बैग पकड़ता है तो फिर आपको कुछ करना चाहिए, right? I don't know if she was there, but to demonstrate this, I would actually bring out my student and I'll use my laptop bag. Definitely. Yes. I have my laptop bag. Yes. But one second. Before that, let me talk about the wrist grab, which a lot of people say कि अच्छा अगर सामने वाले ने आपका हाथ पकड़ा तो आपको ये टेक्निक करना चाहिए. There are many techniques you can do. लेकिन अभी ट्रेनिंग में, बिकॉज ही इज माई स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट है, उसे पता है कि मैं आपको डेमो दे रहा हूं, इसलिए वो ज्यादा जोर से नहीं पकड़ रहा है, राइट? इफ यू सी दिस, वो ज्यादा जोर से नहीं पकड़ रहा है, दैट्स व्हाई आई कैन डू दिस टेक्निक. लेकिन अगर वो, इफ वी आर ऑन द स्ट्रीट, अगर वो मुझे मारना चाहता है, ग्रैब,
right? No, just grab it tight, right? Now, I can't do this. He's got the other hand, right? वो दूसरा हाथ इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, right? Yes. और वो यहाँ पर पकड़ के उधर खड़ा नहीं रहने वाला कि मैं कुछ टेक्निक करूं. Same thing, leave this. Same thing is with this. This is my laptop bag. ये आपका पर्स हो सकता है. If he grabs my purse, he is not going to wait there. वो वहां पर रुकेगा नहीं कि अच्छा ठीक है अभी मैं कुछ टेक्निक करूंगा. No, he is not going to do that. Correct? So ये ना हो. This is what self-protection is. I shouldn't let him get to this. So you have got what we call personal space. आपका जिधर तक आपका हाथ बाहर जाता है ये आपका personal space है. Nobody can enter this space. So if he enters this space, मुझे पता है कि ये कुछ करने वाला है. Yes or no? Because अगर उससे मुझे बात करनी है या मुझे गाली देना है वो वहां से गाली दे सकता है ना, वो वहां से बातचीत कर सकता है. He doesn't need to come this front. उसे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है. Okay. So this shouldn't happen. But to answer your question, you have a pen or you have your cell phone. I'm going to use the marker. Okay. You have your marker. I'm standing like this. I'm standing like this. However, if he's coming before he touches, go back. That's it. Okay. That's why the pen is the most dangerous weapon you can ever find, if you know how to use it, right? If I'm standing here, if he's coming, that's it, finish. Right. And this is coming straight here, right? Yes. So उस वक्त पे पहले तो हमें देखना चाहिए कि वो ये हमारा जितना हाथ स्प्रेड होता है वो 1 मीटर के आसपास का दूरी होता है. हाँ, किसी को हमें आने नहीं देना चाहिए. अगर कोई आ रहा है तो उस वक्त पे हमारे दिमाग में एक अलार्म बज जाना चाहिए कि ये आदमी बहुत पास में आ गया है और ये इतना पास में आया है ताकि वो अपने हाथ यूज करके हमें कुछ करे. तो अगर वो मेरे पर्सनल स्पेस के अंदर आना है तो फिर मैं हाथ ऊपर रख सकता हूँ. मैं उसको बोल सकता हूँ आई कैन टॉक टू हिम. अच्छा भाई क्या प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए आपको? ओके. सो आपने बोला था वर्बली एंगेज करना चाहिए. यस. ओके. सो मुझे अपने हाथ ऊपर रखने हैं. इफ आई हैव गॉट अ पेन इन माय हैंड, मैं खाली ऐसे खड़ा हूं बस. ओके. अगर मैं देखता हूं कि सामने से कोई आ रहा है, बाजू से कोई आ रहा है, आई एम गोइंग टू बी लाइक हां. ओके. सो नाउ सी माय पेन इज हियर. मेरे हाथ नीचे नहीं है, राइट? अगर मेरा हाथ नीचे होगा तो ये ज्यादा टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने को. करेक्ट. अगर मेरा हात यहाँ पर ही है, मूव, इट्स राइट देयर. बापरे, त्याला लागलं. Okay. ते हे घातलंय त्यांनी म्हणून नशीब घातलं. Okay, I will just mute yourself. This is very safe demonstration. Don't worry about that. Yes, Danish. He is wearing a proper helmet. You don't have to worry. He's not hurt at all. Yes. So this is very interesting, Danish, and we're seeing that we can do many things much before we get into trouble. Yeah, correct. बहुत सारी चीजें. आप अगर टेक्निक सीखने जाओगे तो मैं आपको 1000 टेक्निक सिखाऊंगा. आपको थोड़ी मालूम है कौन सा टेक्निक कब निकालना है. क्या आप अगर 10 लोग आएंगे तो कौन से टेक्निक करोगे आप? मैं तो नहीं जानता कोई टेक्निक जो 10 लोगों को एक साथ मार सकता है. तो ऐसे हमें जाना ही नहीं कि जहाँ पे 10 लोग दंगा कर रहे हैं वहां पे हमें पहुंचना ही नहीं है. एब्सोल्युटली. हमें पहले से ही पता होना चाहिए यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ से कुछ हो रहा है, तो हमारे फोन में देख के या ऐसे कुछ सोच के ऐसे चलना नहीं चाहिए. हमेशा करेक्ट. हमें देखना चाहिए आसपास. हर 2-3 मिनट आप बोलते हो हमें देखना चाहिए. करेक्ट. अभी जैसे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोन, राइट? अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मेरे हाथ में फोन है और मैं नीचे देख रहा हूँ, अगर सामने से कोई मुझे अटैक भी करने वाला होगा और मुझे टेक्निक पता है, मुझे 1000 टेक्निक आते हैं, लेकिन अगर मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, मैं उसका अटैक देख नहीं सकता, तो मैं डिफेंड कैसे करूंगा? Yes. Right? Yes. So awareness is important in everything. आप अगर फाइट करना जानते हो, नहीं जानते हो, आपको अवेयरनेस तो रखना ही है. You have to be aware about yourself, your environment, and the people around. Okay. So we also have Shraddha ji who wants to ask us a question. Shraddha ji, आप अपने आप को unmute करके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं.
Yes, Shraddha ji, we are waiting for you. अगर आपको पूछना है अभी question. Okay, so I think she's having some technical issue right now. All right. Acha. We'll open the questions to. Oh wait, I see. There's one question. I think with the help of mobile, if we can produce a sound of policeman, that may also work. If you can throw a light on this. Okay, the siren of the policeman. Yeah, I get it. If I tell you the truth, अगर मैं सच बात बोलूं तो हम लोग ने इतने सारे मूवीज देखे हैं और मूवीज में जो बताते हैं हम सोचते हैं कि अगर वो पिक्चर चलता है तो असली जिंदगी में भी चल सकता है. और यू नो दिस थिंग अबाउट द पुलिस मैन, ये एक्चुअली मैंने कोई इंग्लिश मूवी में भी देखी है दैट कोई अटैक करने आता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे प्ले द सायरन ऑफ द पुलिस वैन एंड द रॉबर्स रन अवे और दोस पीपल रन अवे. लेकिन I don't think that will actually work. ये सिर्फ फिल्मों में होता है. Yeah, I don't think because see उसे पता है अच्छा ठीक है पुलिस की गाड़ी की सायरन चल रही है, लेकिन अगर मैं अटैक करने वाला तो मैं तो बोलूंगा अच्छा ठीक है उसको तो टाइम लगेगा ना, पुलिस को तो आने में टाइम लगेगा, फिर हमने गाड़ी से बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा, यू नो ऑल दीज थिंग्स. अगर मुझे कुछ करना है तो फिर मैं कर भी सकता हूँ. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स, यू नो एवरीथिंग रियली डिपेंड्स. बट यू नो कोई चीज है जो खाली फिल्मों में चलती है वो असली जिंदगी में नहीं चलती है. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. Okay, we have Madhu Lunawat ji who has raised a hand. Yeah. Namaste, Madhu ji. सर नमस्ते. अब जैसे कभी ऑटो में जाते हैं हम, ऑटो में जाते हैं, अब अपन को लगता है कि वो आदमी ऐसा है, बैठ गए अपन, और फिर उस टाइम पे अब अपन क्या करना, कैसे उतरना, वो चलते चलते में, तो फिर क्या करना उस टाइम पर अपन. करेक्ट. तो अभी आप बोल रहे हो कि हम ऑटो में बैठे हैं और उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ये मुझे किधर यू नो कोई गलत जगह पर लेके जा रहा है, जो भी है, राइट. नाउ मैं तो अभी अगर मैं बोलूंगा तो यू नो कोई लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब सोच रहे आगे. बट आप जब भी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हो, स्पेशली टैक्सी और उबर और ऑटो का नंबर रहता है, टैक्सी का नंबर रहता है, राइट. हमारे घर हम लोग व्हाट्सएप पे, सब लोग तो व्हाट्सएप है, यस. तो अगर उसका एक फोटो लेकर आप आपके जिसको भी आपको भेजना है, यू नो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, जिसको भी एक टाइम भेज देते हो, सो दे नो कि अच्छा ठीक है ये मतलब अगर मम्मी ने ये ऑटो में बैठी है, दिस इज द नंबर, ये नंबर है ऑटो का नंबर. तो फिर अगर आपको खाली टेक्स्ट करना है, देखो अगर आप फोन पे बोलोगे, अगर आप कॉल करके बोलोगे कि अजय मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है, तो उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपको पता है. तो आपको सामने वाले को क्या दिखाना है कि आपको कुछ पता नहीं है. आप अगर टेक्स्ट कर लोगे आपके किसी को भी, हस्बैंड को, वाइफ को, यू नो बच्चे हो, जो भी हो, आपको एक मैसेज रखना पड़ेगा. आप वो टेक्स्ट कर दोगे तो सामने वाले को पता है अच्छा ठीक है कुछ हादसा शायद होगा, सो दे कैन स्टार्ट ट्रैकिंग. वो नंबर लेकर, ऑटो का नंबर या टैक्सी का नंबर या उबर का नंबर लेकर ट्रैकिंग शुरू कर सकता है, राइट. तो आपको पहले ही, बैठने के पहले ही आप अगर फोटो लेकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो, या आपके हस्बैंड को डाल दो, या बच्चे को डाल दो, सो दे ऑलरेडी, उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहले से पता होगी, तो फिर उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा. और फिर आप बोल भी सकते हो ना कि स्टॉप, रुको, मुझे यहाँ पर निकलना है. थैंक यू. No, not a problem. Okay, good. So thank you for that question, Madhu ji. और अगर किसी को अभी question है तो we can take the last question, and you know we have already crossed our time. एक मिनट, can I speak? Yes, Mr. Prakash, definitely. So दो चीजें नॉर्मली हम लोग करते हैं. एक तो अकेले जाते नहीं है, कहीं जाना है तो दो लोग साथ में जाए, फाइंड आउट अनदर पर्सन, उसके साथ थोड़ा टाइम मैच कर ले, वो 4 बजे जाएगा. एक एंड सेकंड थिंग इज कुछ गहने पहन के जाना ही नहीं. गहने पहन के जाना क्यों? बाहर जाना है तो अपना पर्पस क्या है? सामान लाना पर्पस है, दोस्त से मिलना पर्पस है, दोस्त को इम्प्रेस करना थोड़ी पर्पस है कोई. करेक्ट. शादी ब्याह में गहने पहन के नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है? उनको तो आप मिले इसकी खुशी, आपके गहने देखने की खुशी के दिन तो बचपन में, जवानी में निकल गए, अभी सब हो गए वो चीज. सो आई थिंक इंदौर में बहुत सारी लेडीज कभी कभी ट्रैक होती है तो बहुत ज्यादा गहने पहन के वो अकेली दोपहर को 2 बजे किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाती है.
फिर वो ऑटो वाला हिल के अकेले सुनसान जगह पे लूट लेता है। सो आई थिंक ये साइकोलॉजिकली एक टेंडेंसी होती है प्रे की टू गेट अट्रैक्टेड टू प्रेडिएटर। मेरे ख्याल में ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से अपने आप को करना चाहिए कि ज्यादा पैसे नहीं लेना, 200 रुपये जेब में रखो, हजारों रुपये क्यों ले जाना, जितना है उतने छोटी पर्स लेके जाओ, अकेले मत जाओ, 2 जने जाओ, जाना है तो सवेरे जाओ, शाम को जब थके भागे तो क्यों जाओ, यू आर मोर एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग, या ऐसे टाइम जाओ जब कम भीड़ होगी दुकान पे। आई थिंक दिस इज फ्यू थिंग्स व्हिच आई लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। या नो, दैट इज एक्चुअली वही तो सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड खाली बेचने के चक्कर में वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यू नो इट इज वेरी 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 सिंपल। और यू नो जो ज्वेलरी की बात की सर ने, यू नो वो हमारे अवेयरनेस ट्रायंगल में सेल्फ अवेयरनेस में आता है। अटायर, आप क्या पहने हो, राइट? So even jewelry is something that you are wearing on your body, so that also becomes something that somebody can use or attack you for. अगर बाई चांस नाइट में अकेले आना हो तो हमें अपने आप को कैसे सेव करना पड़ा चाहिए? तो अगर आप पार्टी से आ रहे हो तो फिर आप किसी और के साथ भी आओ, राइट? यू हैव टू कम विद समबडी। या तो फिर अगर आपको पता है नहीं मुझे अकेला ही मुझे घर पे वापस जाना पड़ेगा, सो देन आपको और भी ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत पड़ेगी, राइट? बिकॉज आपको पता है कि आप अकेले हो, आपके साथ आपका दोस्त नहीं है। अगर मैं और दानिश किधर साथ में जा रहे हैं तो फिर मुझे पता है कि ये भी अवेयर है सिचुएशन के बारे में। लेकिन अगर मैं अकेला जा रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे दुगना अवेयर रहना पड़ेगा, राइट? एंड सो यू हैव टू बी मोर अवेयर। वो हो गई बात। और फिर आप पेपर स्प्रे रखो, आपके पेन, आपके हाथ में पेन रखो, छड़ी है आपकी, अगर वॉकिंग स्टिक अगर आप यूज करते हो, so that also can be used as a weapon. Yes. So see the pen. Yes, ma'am. We'll just give you a chance to ask a question. Danish, you can continue, and then next we'll have ma'am ask a question. तो पेन एंड पेपर स्प्रे, ये दो चीज, और मोबाइल तो है, तो आपके पास सब है जो आप यूज कर सकते हो। Okay, ma'am. आपको क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद अनीता जी also has to ask a question. Go ahead. हाँ, मैं पूछूं? Yes, ma'am. हाँ, ऐसा कि ये इंसिडेंट मेरे बेटे के साथ हुआ है रिसेंटली। रेड लाइट के ऊपर गाड़ी खड़ी थी, काफी ट्रैफिक था, और जबकि वो ट्रैफिक के बीच में सेंटर में था, तो 4-5 लड़के आए हैं, उन्होंने आके गाड़ी को घेर लिया और इसने शीशे नहीं खोले बिल्कुल भी। भाई हो सकता है कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उन लोगों ने काफी जोर से शीशों को नॉक किया, आगे पीछे साइड से सब कुछ। और उसने फिर मतलब इतना सा शीशा खोला कि व्हाट हैपेंड, क्या चाहते हो तुम लोग? तो कहने लगे कि आप लोग टायर लेना चाहते हो? तो उसने बोला नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कोई टायर वायर नहीं लेना चाहता। तो कहने लगा कि ऐसा है कि सर आपने ना हमारे एक लड़के का पाँव उसके नीचे दबा दिया है, गाड़ी के पहिए के नीचे, तो आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, या आप उसको डॉक्टर के पास लेके चलो, पेमेंट करो, कुछ करो। तो उसने शीशा इतना सही खोला था जिससे उनकी आंख और आंख मिलके बात हो रही थी ना। करेक्ट। उनके पास पता नहीं क्या चीज थी, भगवान जाने क्या था, कि उन लोगों ने पूरा शीशा खोल दिया। चारों तरफ के पूरे शीशे खुल गए, और गाड़ी में आगे ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे उसका पर्स और मोबाइल पड़ा था, जो वो दूसरे वाले आदमी ने उसको बातों पे लगा के वो वाला ले गया। करेक्ट। एकदम मतलब रेड लाइट खत्म हुई तो ये आ गया चल के, और इसको इतना भी नहीं पता लगा कि मैं ये कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। थोड़ा सा आगे आया तो फिर इसने सोचा कि मैं घर इन्फॉर्म करूं कि आज मेरे साथ रेड लाइट के ऊपर ये इंसिडेंट हो रहा था। तो जब घर आया तो बड़ी बुरी तरह से घबराया हुआ था कि मामा मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तो अब आप बताइए उस टाइम क्या किया जा सकता है? सो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं कहीं जा रहा था और मैं अकेला था गाड़ी में, और मैं यहाँ पर मतलब ऑटो से ऑटो मेरे बाजू में चल रही थी, और मैं ऑटो को ओवरटेक करके आगे, थोड़ी भीड़ थी तो इसलिए फिर मैं रोक दिया मेरी गाड़ी, बिकॉज ऑब्वियसली लोग चल रहे थे। तो सेम चीज मेरे साथ भी हुआ। वो ऑटो से निकला और फिर मेरे खिड़की के ऊपर उसने जोर जोर से उसने खटखटाया। और यू नो ये सिचुएशन में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको कभी कभी कैसा होता है, हमें लगता है कि हमने शायद कोई गलती की जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, राइट? आपके बेटे को शायद लगा होगा कि हाँ शायद मैंने गाड़ी किसी के पाँव के ऊपर से ले गया हूँ, शायद, राइट?
सो दिस अगेन, ये मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आराम से आस्ते से चला रहा था, ये मैं अपने आप के बारे में अवेयर था, मैं गाड़ी कहाँ पर चला रहा था उसके बारे में अवेयर था, और ऑटो में कौन बैठा था, ऑटो कितनी दूरी पर थी गाड़ी से, उसके बारे में भी मैं भी अवेयर था। नाउ जब भी मैं रुका और जब भी सामने वाला खटखटाया, मैंने बिल्कुल भी विंडो नीचे नहीं किया था, इतना सा भी नहीं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, कोई लोग अगर बहुत ज्यादा, जिनके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो लोग फोर्सफुली विंडो को नीचे खींच सकते हैं। तो इसलिए कोई भी हालात में आपको विंडो नीचे नहीं करना है, और आपको सारे दरवाजे बंद करने, लॉक करने हैं। बिकॉज अगर आप सोचो, अगर वो गाड़ी के बाहर नहीं निकलते, आपको मालूम, उनको तो पता था कि रेड लाइट खुल जाएगा। अगर वो तो मैंने बहुत थैंक गॉड किया, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि बेटा तू नीचे तो नहीं उतरा ना, तेरे को तो नहीं लगी, गया सामान जाने दे, उसकी कोई बात नहीं, पर तू अभी इतना घबरा मत, कुछ नहीं, जो होगा देखी जाएगी, सामान तो दोबारा आ जाएगा, तू सेफ है ना, बस दैट्स ऑल। करेक्ट। नहीं, वही तो मेन चीज वही हो जाती है ना, कि आपको उस खराब सिचुएशन में अंदर जाना ही नहीं है। अगर आपको पता है हाँ मैंने कुछ नहीं किया हूँ, तो फिर आप गाड़ी में ही बैठो, क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठा था, और फिर जैसे भीड़ लोग सब हट गए, मैं गाड़ी निकाल लिया। पर ये देखो, कोई लोग हेल्प के लिए भी नहीं आए, मतलब जो आसपास इतने ट्रैफिक में लोग थे, किसी ने पूछा नहीं कि सर क्या हुआ, क्यों ये लोग आपका दरवाजा तोड़ रहे हैं, क्यों शीशा तोड़ रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं। इनफैक्ट मैम, अगर मैं आपको सच बोलूं ना, तो मेरा एक्चुअली, मैं कभी मार्शल आर्ट सिखाने वाला ही नहीं था। मैं सोचा मैं पुलिस को सिखाऊंगा या आर्मी वाले लोग को सिखाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतना क्राइम हो रहा है और एक दूसरे को मदद करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है, तो आई हैव टू टीच द पीपल हु आर इन नीड, राइट? आई हैव टू गिव द पावर बैक टू द पीपल। तो मेरा सिखाने का मकसद भी यही है कि हम अपनी सुरक्षा कर सके। बिकॉज जैसा आपने बताया कि आजू बाजू लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर रहा नहीं था। अभी अगर आप रेप केस की बात करो या कुछ भी, कोई भी वायलेंस होता है आजू बाजू, कोई कुछ नहीं करना चाहता है, तो फिर क्या करेंगे ना? यू हैव टू गिव द पावर ना आपको। मतलब अगर मैं ये पोजीशन में हूँ कि मैं इतना सब सीखा हूँ, तो फिर मुझे, पर वही है ना दिनेश जी, इसीलिए लोग नहीं आते कि शायद उनके पास कुछ होगा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी चक्कर में लोग आजकल पास नहीं आते। नहीं, करेक्ट। तो मेन रीजन इज दिस, बिकॉज दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ना। उनको कॉन्फिडेंस, उनको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। अभी जैसा विकास सर बोल रहे थे, अगर मैं एग्जाम में पढ़ के जाऊंगा तो मुझे पता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन वही तो है, यहाँ पर इंडिया में सेल्फ डिफेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन, या जैसा बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ आवर ओन लाइफ इज सो लिटिल कि लोग। अभी ये जो ख्याल की हम लोगों ने मेंबर बनने ज्वाइन किया, उसके लिए भी पहले तो फैमिली मेंबर डरते रहते थे कि बनना है नहीं बनना, आजकल मम्मा बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, ऐसे में से ले लेते हैं, बैंक में से ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है, विकास जी हैं, अल्फी है, सबसे हमारी बात होती है, कोई ऐसी कोई चक्कर ही नहीं, वो हमारे से कुछ ले ही नहीं रहे, बल्कि वो हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, हम लोगों को गेट टुगेदर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो घर में भी आजकल टाइम ऐसा है, और कोई बात नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली। अभी जब भी मेरे को कभी इतना दुख होता है कि लोग 1-1 लाख रुपए का फोन खरीद लेते, लेकिन अगर किसी को बोल दो कि 3,000 रुपए आप दो ट्रेनिंग करने के लिए, आप वहां पर कुछ सीखोगे जो आपकी जान बचा सकता है, पोटेंशियली जान बचा सकता है, उनको 3,000 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं। वो फिर उनके इधर से नहीं उधर से निकल जाते हैं ना, तो यही सब बात है ना। आई मीन इट इज वेरी सिंपल। अभी अगर मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, अभी ये तो इतने अच्छे से विकास सर ने बोले कि नहीं, यू कम, ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि मैं आपके साथ ये सब शेयर कर सकता हूँ। लेट मी इंटरफियर, आई वांट टू से समथिंग। यस यस। हाउ इट वाज टोल्ड दैट समबडी सेड दैट ऑटो में बैठ गए, और फिर उसके बाद हमको समझ में आया कि वो ऑटो वाला सही नहीं था। इन द सेम लाइंस, व्हेन यू आर इन अ कैब, you should always sit behind the driver if you are alone. Absolutely. You should not sit on the other side. You should always sit behind the driver. Correct. Because then the driver has very difficult access to you in any ways. So absolutely. That is one more thing I would like to add. No, absolutely. That is spot on. So great points we have been discussing. आज हमने
बहुत सारी चीजें डिस्कस की अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। दानिश, हमें बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। एंड अब the main thing is that our ख्याल community members are going to implement it. हम अभी ये हमारे लाइफ में इसे धीरे धीरे करके एक एक चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि इवन वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली, गुड गुड। तो दानिश, अगर हमारे मेंबर्स को आपके साथ कांटेक्ट करना है, उनको इफ दे हैव देयर ग्रैंडचिल्ड्रन और चिल्ड्रन दैट दे वांट टू कम टू योर डोजो, एंड आपका डोजो जो है, डोजो का मतलब होता है आपका जो ट्रेनिंग सेंटर, राइट? ट्रेनिंग सेंटर जो आपका बांद्रा में है, मुंबई में। तो हम कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा सेल फोन नंबर है वो 9821978647। मैं आपको भेज दूंगा, आप फॉरवर्ड कर सकते हो जिनको भी चाहिए। डेफिनेटली आप और एक बार बोल दीजिए, हम ग्रुप में डालेंगे। हमारे जो व्हाट्सएप, हमारी जो कम्युनिटी ग्रुप है, वी आर ऑलमोस्ट 3000 पीपल। तो हम ख्याल कम्युनिटी इज 3000 सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और हम ऑलमोस्ट एवरी डे मिलते हैं। वी डू दीज इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। और बेस्ट चीज मैं जो बोलता हूँ दानिश जी, इज दैट आवर मेंबर्स टेल अस कि उनको क्या करना है, तो हम उसके हिसाब से ये सब इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज उनके लिए करते हैं। और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे कम्युनिटीज होगी इंडिया में इसमें इतने एक्टिव मेंबर्स है। तो हमारे मेंबर्स बहुत एक्टिव हैं और वो इतने सारे अलग अलग चीजें करते हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। इनफैक्ट मैं जब भी सेमिनार लेता हूँ इतने यूथ के, Can you send your email? I will do that. Yes, I will. I can do that as well. We will put it in the chat also. If you can save it now, and we will put it in the group. Should I type? Definitely you can do that. And just to let you all know that Danish has founded his dojo, जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है, और उसका नाम है Enlightened Hand. ओके, और ये बांद्रा में है, मुंबई में। और वो सेल्फ प्रोटेक्शन, जो विमेन्स का सेल्फ प्रोटेक्शन है, वो भी विवेकानंद यूथ फोरम के लिए करते हैं, जो एक एनजीओ है, राइट? तो आप बहुत लोगों को ट्रेन भी करते हैं। तो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद दानिश फॉर द ट्रेनिंग, उनका नंबर उन्होंने चैट में सेव किया है, ईमेल। ओके, तो उनका, यस, आप नंबर भी डाल सकते हो दानिश, तो वी कैन गेट इन टच विद यू। वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, और आई एम श्योर इसमें बहुत, ये तो हमने सिर्फ सरफेस में देखा है क्या क्या है इसके अंदर, जो डिटेल्स है और इतनी सारी चीजें हमें एक्चुअली सीखनी है, ये तो आपके साथ ट्रेनिंग करके ही हमें समझ में आएगा। तो बट अभी तो हमें समझ में आया कि सेल्फ प्रोटेक्शन जैसी चीज हमारे हाथ में है, और ये जो आपने ये टिप्स जो दिए हैं हमें, वो हम यूज कर सकते हैं और अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है दानिश जी। Yes. Sometimes क्या होता है कि when you're shopping and you're sitting in the car and your saman is on the left side, or your important things, and someone comes and tells you, अरे तुम्हारा पैकेट तो पीछे रह गया, या तुम्हारा वो गिर गया है। You come out, you go into the road, वहां से दूसरी तरफ से वो बंदे लेके चले जाते हैं सारा। करेक्ट। कार से उतरना नहीं चाहिए। हाँ, कार से उतरना चाहिए। और मुझे पता है कि मैं ये बहुत ज्यादा, सामान गिर गया बोलते, तुम्हारा सामान नीचे गिरा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा दोहरा रहा हूँ, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो कि हाँ, मेरा जो भी सामान है मेरे पास है। अभी लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि अच्छा शायद पैसे फेंक देते हैं सड़क पे कि आपके पैसे गिरे हुए हैं। हाँ, तो आपको वो सब नहीं करना है। दूसरे वाले लोग के बारे में, मतलब वो कुछ भी बोले, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, बिकॉज वो क्या झूठ बोल रहे हैं आपको पता नहीं। अभी हम किसी के पेट में झाँक के तो नहीं देख सकते ना, राइट? सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली आप कहाँ पर सेफ हो और आप कहाँ पर अनसेफ हो। तो अगर आपको पता है ये अनसेफ है, ये अनसेफ जगह, ये सेफ जगह, तो आप जाओ ही मत। डिटेक्ट एंड इवेट, देखकर भाग जाओ या देखकर हट जाओ। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द ख्याल कम्युनिटी मेंबर्स। आप ये सेशन में आए एंड you took part in this session so actively. Danish, I'm sure you enjoyed talking to our senior citizens. I had a lot of fun from the Khayal community. Okay,
And we will get in touch with you definitely. For the members, we have shared your number and your email address, and we have lots of comments here. People are saying that this session was very interesting, and there were lots of things, lots of learnings. हमको बहुत नई चीजें सीखने को मिली. बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत है. हमें ये कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, और constantly build the fort and make it stronger. Yes, absolutely. Okay, so thank you so much, Danish, and thank you everyone from the Khayal community. We have thank you very much. Went over a time of 1 hour to 1.5 hours because it was such an interesting talk. So thank you. Thank you very much. 150% दे दिया. So thank you everybody and goodbye. We will see you tomorrow for our session of yoga with Varsha Sutrave Fitness Kal Sham ko, and we will be concentrating and doing yoga sessions on when a lot of our members have said that they were getting cramps. आपके जो पैर में जो हिंदी में बोलते हैं कि वो cramps आते हैं. तो for that, especially in the monsoons and in the monsoons और ठंडी के सीजन में जो होता है, तो उसके ऊपर हम खास योगा करने वाले हैं. So you can definitely attend that. And thank you, Danish, once more. And also thank your student, Danish. Yes. Both of you. Thank you very much, Danish. Pleasure, my pleasure. You all really, did a lot of physical, defensive moves. और हमको समझ में आया कि क्या करना चाहिए. And your explanations were very, very easy and simple for our senior citizens to understand. Oh, I'm so happy. I'm so happy that you all had a good time. Thank you. Have a great evening, everybody. You too, all of you all. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Thank you. Take care, everyone. Bye-bye. Bye-bye.